आज हम डिस्कवर योर सेल्फ जो आपने लास्ट टाइम सीरीज शुरू किया, वी विल ट्राई टू गो लिटिल मोर अहेड इन दैट, हम उसमें और आगे चलते हैं. बिफोर दैट वी विल लाइक टू जस्ट नो अबाउट यू, वी विल लाइक टू नो यू, आपके बारे में हम जानना चाहते हैं. सो कैन यू क्विकली एवरीवन कैन से योर नेम एंड व्हाट डू यू डू नाउ, आप अभी क्या करते हैं और आपका नाम क्या है. सो जस्ट क्विकली. यस प्रभु. आशीष प्रभु गलगोटिया कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. यू आर राकेश गुप्ता, pharmacy from Galgotia College. Which year you are? Second. Thank you so much, Rakesh Prabhu. My name is Arjit Singh. You are? My name is Arjit Singh. Arjit Singh. I am pursuing BTech from Galgotia. Galgotias, all Galgotias, huh? Is that? Okay. My name is Harsh. Harsh, yeah. Okay, some variety. Second year BTech Sharda. Okay, good. Prabhus, yes. Aap. Huh. BCA from Galgotia University. Very good. Yourself. Structural design engineer. Okay, very nice. You are a software engineer. Where do you work? LG. Oh, okay. Nearby LG. What's the company? Zone Labs. Thank you. You are engineer, right? Everyone. Myself, Anas Masal. I am from GL Bajaj. Final year BTech. Yes. सत्यम, और क्या करते हो आप? हाँ? BBA कर रहे हो आप? Okay. कहाँ से? IBPT कॉलेज. BTech third year from where? GNIOT. Good. Thank you so much. Prabhu? Second year BTech from GL. Prabhat. Thank you so much. Prabhu? You are Rahul? Okay. For NEET. Okay. Which institute? From AIMS? GIMS. Very nice. And what was your specialization? Now in masters you will get. Okay. Thank you, Prabhu. Kamar Pal. Aman Pal. Diploma कर. Very good. Okay. हाँ? Ajit Prajapati. Where is your Praja? Okay. BTech from NIT. NIT also. Which branch you are from, Prabhu? Mechanical. Ajit Prajapati. Huh? Very nice. Thank you so much for coming. Prabhu, what's your name? Harshit Ghosh. You are Bengali. From ILM. Okay. I thought you are from IIM. Okay. And what do you pursue? BTech. Where in Kolkata? Where in Bengal? Kolkata proper? Where in Kolkata? Shan Bazar. Thank you so much. Sorry, can you be loud? AIML. Everyone is doing AIML. From where? Which college? Galgotia University. Galgotia has so many seats, is that? So many people from Galgotia, isn't it? Huh? Spiritual mahal hai. Yes, Prabhu. Srinath Prabhu. And आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? Thank you. And yes, Prabhu. थोड़ा जानना चाहिए ना एक दूसरे को, हम लोग एक ग्रुप में है तो इट्स वी आर टेकिंग सम टाइम बट इट्स इम्पोर्टेंट. यस प्रभु.
Ramesh Engineering College. Thank you so much. What about Mataji's? Law from GNIT. Thank you so much. आप हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, उड़िया किसी में बोल सकते हैं. You're Swati Sharma. Capgemini. You're here in Noida? In Noida. Thank you so much for coming. GNIOT. Thank you very much. Where you are from? Which place? Gorakhpur. Srishti. Okay. Vishwakarma. So the Srishti which is done by Vishwakarma, is that? Okay. Galgotia University. Okay. Better we have this program in Galgotia. Yes, Mataji. You are Ashmi. Okay. IT sector. Thank you very much for coming. BTech from GNIT. Okay. You are Radhika. Astika. Oh, different. Yes. BTech from GNIT. Okay. Okay. So thank you very much. I just wanted to, so that we know each other, because we are in this batch and this will continue. So we took some time to know about each other. And yes, I am Jai Narayan Das. I am also engineer, like most of you. Engineers, they're not very well defined, so they can do anything, whatever is required. Okay, so आज हम DYS. You know full form of DYS? Discover yourself. So what are we discovering? What did you discover in the last class? कुछ डिस्कवर हुआ लास्ट क्लास में? ये सब भूल गए एक हफ्ते में. सोल डिस्कवर किया था किसका? अपना सोल डिस्कवर किया आपने. अच्छा, वेरी गुड. क्या क्या मिला डिस्कवरी में? इतना याद नहीं, लेकिन कुछ तो था. Okay, good. What about others? Anyone else discovered anything in the last session? No? Anything you remember from the last session? कुछ याद है उसमें से? You want to say something? Say, don't worry. No one knows anything anyway. कुछ पढ़ा था? क्या पढ़ा था वही पूछ रहे हैं. नोट्स नहीं लाया. अच्छा. Okay. Anyway. So last session we talked about some big things, especially about this universe. Who created this universe? क्या ये universe चांस से बना है क्या? Right? ऐसे कुछ topics थे. And then also we talked about soul. Correct? अपने आप को हमने discover किया. Good. So today we are discussing the second session of DYS. Today we will try to understand that what is expected, what is really expected from this life. So many people will expect so many things from us. बहुत सारे लोग हमसे कुछ expect करते हैं, isn't it? People will have different, our boss will expect something different from us. If you are married, your husband or wife will expect something different from you. So many people will expect. But if we know ourselves, first of all, if we know ourselves clearly, अगर हम अपने आप को अच्छे से जानते होंगे और अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे. ये DYS सीरीज जो है ना, ये कोई इंफॉर्मेशन डाउनलोडिंग के लिए सीरीज नहीं है कि कुछ भी डाउनलोड, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करें. इंफॉर्मेशन तो बहुत लेते आ रहे हैं हम बचपन से. यस और नो? बचपन से इंफॉर्मेशन ढेर लगा जा रहा है, क्लास नर्सरी LKG से लेके बीटेक तक, और ये बीटेक भी हो जाएगा, इसके बाद भी ढेर सारा इंफॉर्मेशन हम लेते रहेंगे. बात ये कि क्या हम अपनी लाइफ में कुछ इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे हैं, क्या अपनी लाइफ से कुछ मीनिंग निकाल पा रहे हैं कि नहीं.
तो आज का जो सेशन है उसमें हम कुछ टॉपिक्स खास तौर से विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि हम इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हमारे से क्या एक्सपेक्टेड है। आप लोग को क्या लगता है हमारे से क्या एक्सपेक्टेड है? आप इतने अच्छे सुंदर घरों से आए हैं, बहुत अच्छे आप सब लोग, और आप सबका विचार बहुत अच्छा है, तभी आप लोग यहाँ पर ये DYS करने आए हैं, नहीं तो बाहर मोमोज खा रहे होते, है कि नहीं? तो आप DYS करने आए हैं तो आप लोग सच में आपके पास स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है। यस, आपको पता है यहाँ कुछ तो आध्यात्मिक ही मिलने वाला है। यस और नो? एक तो प्रसाद के लिए आते हैं कुछ लोग, वो लेट आते हैं थोड़ा, आप लोग टाइम पे आए हो तो बुरा मत मानना, मैं थोड़ा सा ओपनली बात करता हूँ। इज इट ओके? आर यू कंफर्टेबल डॉक्टर साहब? सो हमसे क्या एक्सपेक्ट, आपको क्या लगता है ये जो ह्यूमन लाइफ हमारा है इसमें और बाकी जो लाइफ फॉर्म्स हैं जैसे कि एनिमल्स हैं, आपको लगता है इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? कुछ हमारे से क्या, इस लाइफ से क्या उम्मीद क्या है हमें? अजीत, राकेश गुप्ता, गुप्ता जी आपको क्या चाहिए इस लाइफ से? अगर भगवान आज आ जाए आपके सामने, बोले गुप्ता जी मांगो, क्या मांगना, क्या मांगोगे? हैं? हाँ, भगवान चाहिए। वाह वाह, तालियां बजाइए इनके लिए। तो बड़े समझदार हैं गुप्ता जी। तो गुप्ता जी जो है वो समझदार पहले से ही होते हैं, को पता है कि किस चीज में सबसे ज्यादा मुनाफा है कि नहीं? है, इन्होंने खुद ही भगवान को ही मांग लिया, बोले भगवान आएंगे तो सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। यस और नो? कितने इंटेलिजेंट हैं सच में। आई एम वेरी इंस्पायर्ड टू आंसर, टू हियर योर आंसर। बहुत अच्छा, इन्होंने सब कुछ ही मांग लिया, इसके बाद क्या बचा मांगने के लिए, है कि नहीं? तो आज हम देखते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग से क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे हम उसको फुलफिल करेंगे। और ये सेशन तो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा इधर कर देंगे, आई कैन ऑल्सो सी सो दैट प्रैक्टिकल वैदिक सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम इसको आसान करेंगे थोड़ा और आसानी से समझेंगे, और कोशिश करेंगे कि आज के सेशन से हम जो ये क्लास के एंड में जब हम जाएं तो हमें कुछ हमारे पास हो कि भैया मुझे ये करना है, या ये मेरा कुछ तो लेके जाना चाहिए ना क्लास से। आप आए हैं, बैठे हैं, यस और नो? सो आप, आज मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास के बाद, इस डिस्कशन के बाद आप सब कुछ दो दो चीज़ें अपने लिए लेके जाएं इस डिस्कशन से। और मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोग कुछ मिला कि नहीं, कुछ मिला तो उसको मतलब कि कुछ अंडरस्टैंडिंग है ना, कुछ अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है मुझे ऐसा करना चाहिए, या फिर मेरे को लगता है कि इस पे भी विचार करना चाहिए कम से कम, समथिंग एट लीस्ट, इजंट इट? सो लेट्स ट्राई टू डिस्कस। सो आज हम कुछ की एरियाज को डिस्कस करेंगे। एनिमल्स वर्सेस ह्यूमन बीइंग्स हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम लोग एनिमल से कुछ अलग हैं क्या, हैं तो क्यों हैं? टेम्परेरी सॉल्यूशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन हमें क्या सॉल्यूशन देता है, और वैदिक नॉलेज हमें कैसा सॉल्यूशन देता है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर, ओके? और हम ऑथोराइज्ड वैदिक नॉलेज हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए टाइम शॉर्ट है, क्लास का नहीं, लाइफ में बहुत सारा कुछ करना है। अगर हमें प्रायोरिटी क्लियर नहीं होगा तो काफ़ी समय कुछ करने के बाद हमें लगेगा कि यार ऐसा ना हो कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए, और कम इम्पोर्टेंट चीज़ें इम्पोर्टेंट। किसी ऑथर ने कहा है बहुत अच्छा लाइन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू कीप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बनी रहे। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कम इम्पॉर्टेंट हो गई तो फिर बाद में लाइफ में हमें दुख मिलेगा, लैमेंटेशन मिलेगा। एक बार गलगोटिया यूनिवर्सिटी के 5 फ्रेंड्स न्यूयॉर्क चले गए,
और न्यूयॉर्क जाके उन्होंने सबसे ऊंचा जो होटल था, 100 स्टोरीज का होटल था, उसमें अपना एक रूम बुक करा। यहाँ से बुक करके गए थे और जब वहाँ पहुँचे तो रात हो गई थी, रात के 8-9 बजे वहाँ पहुँचे। अपने रूम्स में उन्होंने सामान रखा, ऊपर 100 फ्लोर पे, वहाँ न्यूयॉर्क में पूरा न्यूयॉर्क दिख रहा था। वहाँ से ऊंचा होटल था ना, तो सब दिख रहा था। तो एक ने कहा कि भाई न्यूयॉर्क तो हम आ गए हैं, इतना खर्चा करके आए हैं, 1 हफ्ते के लिए आए हैं, और अभी सो जाएंगे तो सोने थोड़ी आए हैं यहाँ पे, तो देखते हैं न्यूयॉर्क की लाइफ देखते हैं। थैंक यू। तो उन्होंने कहा कि अभी चलते हैं रात को ही। तो उन्होंने एक टैक्सी बुक करी और सारा न्यूयॉर्क जो है रात को घूम रहे हैं इधर उधर, क्या है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क कभी सोता नहीं है, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, जगह रहता है न्यूयॉर्क पूरा रात। सुबह के 4 बजे वापस पहुंचे और जैसे ही वापस पहुंचे तो वहां जो लिफ्ट थी उस पर पर्ची लगी हुई थी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, द लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑपरेशन। लिफ्ट चल नहीं रही, खराब है। कौन सी फ्लोर पे होटल है, कमरा है? 100वीं मंजिल पे, और लिफ्ट खराब है। आप क्या करते? बोले इधर ही सो जाता मैं। लेकिन वो लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी से थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि पहले इधर उधर ट्राई किया, रिसेप्शन पे देखा कुछ कोई चांस नहीं। अगले 5-10 घंटे बड़ा फॉल्ट हो गया, मेजर फॉल्ट हो गया, स्पार्किंग हो गया। तो बोले क्या करें, सामान भी ऊपर है, नहाना है, कुछ ब्रश कर, कहाँ से क्या करेंगे? बोले चलो कोई ऑप्शन नहीं है, सीढ़ी से चलते हैं। तो 100वीं मंजिल पे 20-25 फ्लोर तो चढ़ गए। फिर बोले कि भाई थक गए अब कोई स्टोरी सुनाओ, तुम कुछ गाना सुनाओ, तुम कुछ कहानी सुनाओ, कुछ टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए या नहीं? तो 4 जो दोस्त थे वो कुछ सुनाने लगे, कोई चुटकुला सुना रहा है, कोई कहानी सुना रहा है। ऐसे करते करते वो 65वें फ्लोर पे पहुंच गए, 65। ये भी बड़ा अचीवमेंट था, है कि नहीं? और जब 65वें फ्लोर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 4 लोग तो खूब स्टोरी सुना रहे हैं, जो 5वां चुपचाप है बिल्कुल। बोले यार तूने कुछ नहीं सुनाया? तो बोला कि नहीं मैं कुछ नहीं सुनाना चाहता। नहीं, बोले कुछ तो सुना। बोले माई स्टोरी इज ए सैड स्टोरी। बोले मेरे पास तो सैड स्टोरी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सैड ही चलेगी, तो कुछ तो सुना। तो बोले मेरी स्टोरी ऐसे है, मैं सुनाता हूँ। बोले स्टोरी ये है कि हम 5 लड़के गलगोटिया यूनिवर्सिटी के न्यूयॉर्क पहुंचे, एक होटल में एक कमरा लिया। कमरा 100वें फ्लोर पे था। हम सारे लोग न्यूयॉर्क घूमने गए। घूम के 4 बजे जब वापस पहुंचे तो लिफ्ट खराब थी, और हम सब ने डिसाइड किया, और हम अभी 65वें फ्लोर पे पहुंचे हैं। और मेरी स्टोरी में आगे ये है कि जो चाबी है वो रिसेप्शन पे रह गया। अब आप सोच सकते हैं क्या होगा उनका। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कहाँ रह गई है? वो छोड़ ही दिया। अब तो कहीं जीने बीने में सोना पड़ेगा उनको, लगता है कि नहीं? सो ऐसा ना हो जाए लाइफ में बहुत आगे जाके पता चले कि चाबी तो उधर ही रह गई हमारी। तो इसलिए ये जो सेशन है ये हमें आज ही जगाएगा। बोले आज ही जगो, आज ही इस चीज को समझो, ताकि ऐसे ना हो कि लाइफ के एंड में जाके पता चले कि अच्छा यार ये बात थी क्या इस लाइफ की, ये करना था क्या, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो आज के सेशन में हम देखते हैं कि हम अलग अलग लाइफ में चीज़ों में बिजी हैं। हम लोग हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं गेम्स में, स्पोर्ट्स में। कई लोग आजकल बहुत फूडी हैं, खूब खाते हैं, मोमोज खाते हैं, पकोड़े खाते हैं। हाँ, तो हम हर चीज़ में हमें एक तलाश है। वो तलाश किस चीज़ की है? चाहे कोई बीटेक कर रहा हो, चाहे एमबीबीएस कर रहा हो, चाहे कोई फार्मेसी कर रहा हो, हमें तलाश है किस चीज़ की? बताइए, क्या एक चीज़ कॉमन जो सबको चाहिए? सबको, बीटेक वाले को प्रोग्रामिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए,
सबको कॉमन क्या चाहिए? हाँ, देख लिया आपने, हमें हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। जो भी कुछ कर रहे हैं खुशी के लिए तो जी रहे हैं ना। अल्टीमेटली वी वांट सम हैप्पीनेस ना। अगर इतना कुछ करने के बाद भी दुख मिलना है तो बोले वैसे ही ठीक थे, हम तो वैसे ही दुखी हो जाते, है कि नहीं? सब कुछ करने के बाद भी अगर हमें कुछ मिलना ही नहीं है लाइफ में, यस और नो, लॉजिकल है कि नहीं? कितना मेहनत करते हैं, उनसे पूछो, वो बेचारे नहीं, मतलब जो प्रभु जी हमारे MBBS कर रहे हैं, क्या नाम था प्रभु जी आपका? राहुल नंदी जी से पूछो, रात कब हुई दिन कब हुई इनको पता ही नहीं चलता होगा। इतना पढ़ना पड़ता है MBBS, और अभी MD की तैयारी कर रहे हैं। और अगर उसके बाद कुछ खुशी ही नहीं मिला, बीटेक वालों की तो अलग बात है, वो तो वैसे कुछ करते नहीं है। मुझे पता है भाई, मैं खुद बीटेक हूँ, पढ़ाया भी हूँ बीटेक वालों को, हैं? हाँ, तो वो ढूंढते हैं एक जगह, थोड़ा सा लगता है, फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसीलिए इतने सारे लोग आजकल डिप्रेशन के मरीज हैं। देखा आपने कितने लोग आजकल, आज चलता हुआ आदमी एक दूसरे को कहता रहता है मुझे डिप्रेशन हो गया। पहले डिप्रेशन होता था, जैसे पहले हिंदी मूवी में पहले कैंसर होता था, जो हिंदी मूवी में जो हीरो होता है ना, उसकी माँ को कैंसर होता था और वो फिर पूरी मूवी उस पर बनती थी। अभी तो चलते फिरते कैंसर है इसको, डिप्रेशन है इसको, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है इसको। इतना कॉमन है ये प्रॉब्लम कि लगता है कि ये तो यही लाइफ ही है। देखा है आप लोगों ने कितने डिप्रेशन, कितने सुसाइड, क्या क्या हो रहा है। तो ह्यूमन बीइंग हो चाहे कोई भी लिविंग एंटिटी हो, सब लोग हैप्पीनेस ढूंढ रहा है। कोई डिस्को में जा रहा है, कोई नाइट लाइफ एंजॉय कर रहा है, कैसे ना कैसे, कोई नहीं तो बहुत तेज बाइक चला रहे हैं। आपने देखा कि इतनी रिस्की बाइक चलाते हैं, मेरे को लगता है यार ये जीवन को हथेली पे लेके चलते हैं। यस और नो? ऐसे बाइक चलाएंगे जू 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 करके, और वो भी एक्सप्रेस हाईवे पे। देखा आप लोग? नहीं लगा, डर जाते हैं एकदम कि भैया इनको जीवन से कोई प्रेम ही नहीं लगता, लेकिन उसमें उनको एंजॉयमेंट मिल रहा है, कुछ ना कुछ उनको खुशी मिल रहा है। तो हैप्पीनेस को अगर हम समराइज करें, हम जो अलग अलग हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, अगर उसको हम समराइज करें तो मोटा मोटा दृष्टि से, गुप्ता जी, मोटा मोटा दृष्टि से हम चार दृष्टि में, चार एंगल में, चार एरियाज में हम हैप्पीनेस को तलाश कर रहे हैं। वो चार एरियाज क्या हैं? सबसे पहले ईटिंग। इतने कोई भी बिजनेस बंद हो जाए दुनिया का, लेकिन रेस्टोरेंट बिजनेस बंद नहीं हो सकता। यस और नो? कोविड में भी खूब चल रहा था कि रेस्टोरेंट, क्योंकि खाना बेसिक नीड भी है और खाने का चस्का भी है। यस और नो? तो ईटिंग को हम लोग उसमें हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, ईटिंग को अच्छा करना चाहते हैं। दूसरा स्लीपिंग, कुछ मिले ना मिले अच्छे से सोने को मिलना चाहिए। यस और नो? तीसरा मेटिंग, मेटिंग की फैसिलिटीज जो है उसमें ढूंढ रहे हैं, उसमें खुशी ढूंढ रहे हैं। और चौथा जो है डिफेंडिंग। तो चार चीजें, अगर हमारी सारी एक्टिविटीज को देखोगे, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, ये सारी चार एक्टिविटी, ये सारी जो हमारी दिनचर्या है, अगर हम देखें बेसिकली ये चार चीजों को ही फुलफिल करने में लगा हुआ है। पहले बोलते थे रोटी कपड़ा मकान, सुना ना आपने? उसको बेसिक नीड बोलते थे। तो लेकिन यहाँ पर उस नीड्स को थोड़ा और साइंटिफिकली क्लासिफाई किया गया, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। तो जीवन का एक बहुत सिग्निफिकेंट टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ये सब चीज़ों में जा रहा है। तो एनिमल्स भी जो है वो यही चार चीज़ें करते हैं। एनिमल्स भी खाते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, वो उनके पास भी फ्रेंड्स हैं, वो भी फन करते हैं, वो भी, उनका भी फैमिली लाइफ है, तो वो भी ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग में ही मज़ा ढूंढते हैं। और अगर आप देखोगे थोड़ा ये देखिए, और अगर आप देखोगे तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज लगभग पैरेलल ही हैं। वो भी ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग कर रहे हैं, एनिमल्स भी ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग कर रहे हैं। सपोज
सपोज गुप्ता जी आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गए अपने दोस्त को छोड़ने और ट्रेन थी लेट, और ट्रेन रात के 9 बजे की बजाय आई रात को 12 बजे, ठीक है, आप छोड़ने गए थे, तो आप क्या करोगे 12 बजे वहां पर? मैं कहाँ कहाँ सो जाओगे? हैं? नहीं, ट्रेन आ गई, आपने उसको छोड़ दिया, अब क्या करोगे फिर? और यहाँ पे दंगा फसाद हुआ है ग्रेटर नोएडा में, पता चला, तब क्या करोगे? कहीं सोना है, कहाँ सोओगे? कोई रेस्ट रूम में, या फिर है ना, मतलब कोई कोई होटल होगा, कोई रेल होता है ना, रेलवे का वो वेटिंग, कहीं कुछ ऐसा जगह देख के, थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल जगह देखे। अब मान लीजिए राहुल जी की बजाय यहाँ अल्फा 1 से एक कुत्ता गया था कोई, और वो वहां पे लेट हो गया, वो क्या करेगा? उसको सोना है, वो कहाँ सोएगा? कहीं भी सो जाएगा, किसी रिक्शा के नीचे, तो रिक्शा के ऊपर, कार के ऊपर, कहीं भी सो जाएगा। तो देखिए सोना जो है कॉमन है, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में फर्क क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स ने उसको थोड़ा पॉलिश कर दिया। वो कहीं भी सो जाएगा सड़क पे, और हमें एक कमरा चाहिए, कम से कम एक बेड तो चाहिए, अगर सिंपल से सिंपल भी हो। यस और नो? तो इसी तरह ईटिंग, अब अगर एक डॉग को या कैट को खाना है तो उसको जमीन पे रोटी डाल दो, वहां से खा लेते हैं, और हमें खाना है तो हम रेस्टोरेंट में बैठ के या अच्छी प्लेट में खाते हैं। यस और नो? खा वो भी रहा है, खा हम भी रहे हैं। इसी तरह से मेटिंग, सेक्स लाइफ एंजॉय करने के लिए, और डॉग को कोई खास विशेष फैसिलिटी नहीं चाहिए, वो इधर उधर कहीं कर लेते हैं, और ह्यूमन बीइंग उसके लिए बहुत अरेंजमेंट करते हैं। और इस तरह डिफेंडिंग, शेर और कुत्ते और ये सब अपने जॉज, क्लॉज, ये सब से ही अपनी रक्षा कर लेते हैं। देखा नहीं, जब कुत्तों की लड़ाई होती है, 2 गली के कुत्ते इकट्ठे होते हैं, देखा है कि नहीं? वो पूरा सायरन बजाता है कि आ गए आ गए, और वो सारे आते हैं फिर। यस और नो? देखा है नहीं आप लोगों ने? सब तो देखते हैं। और ह्यूमन बीइंग कैसे डिफेंड करते हैं? वेपन्स, गन्स, बड़ी बड़ी मिसाइलें, और अभी तो आपने देखा ये सब अटैक हुए, इतना इधर उधर चला, क्या 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 नहीं था, मतलब एक एक बॉम्ब से पूरे पूरे शिप उड़ा देते थे। यस और नो? तो अगर आप देखोगे तो काम वही है जो एनिमल कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा उसको साफ सुथरा और पॉलिश्ड वे में कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेबल वे में कर रहे हैं। डू यू एग्री? तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ह्यूमन बीइंग्स एक, और वैसे बोल भी देते हैं आजकल तो, मैन इज ए सोशल एनिमल, लेकिन आपको क्या लगता नहीं कि हमारे पास कुछ अलग है? ह्यूमन बीइंग्स के पास जानवरों से कुछ अलग है? आपको लगता है हमारे पास कुछ अलग है? क्या अलग है हमारे पास? क्या ऐसी चीज है जो जानवरों के पास नहीं है, और जो हम अच्छा ये बताइए, जानवर अच्छे कि हम अच्छे? बताइए, हैं? कौन कह रहा है हम अच्छे? हाँ ठीक, अच्छे ही हैं, और क्या, तभी तो यहाँ बैठ के सेशन अटेंड कर रहे हैं। अगर यहाँ 50 कुत्तों को बुला के बैठाएंगे वो मुझे खा जाएंगे, तो किधर से सेशन हो पाएगा? यस और नो? तो हम अच्छे हैं। क्या अच्छा है हमारे अंदर? है जी? थिंकिंग। आपको लगता है बिल्ली के पास थिंकिंग एबिलिटी नहीं है? बिल्ली इतना पेशेंस, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, ये सब बिल्ली के पास बहुत है। बैठी रहेगी, देखती रहेगी। और माता जी जो किचन से निकली और अंदर अटैक किया उसको, तो इतना सोच रही है तभी तो वेट कर रही है, नहीं तो कूद जाएगी तभी कढ़ाई जब है। शीज क्या है? थिंकिंग तो है एनिमल्स के पास, नहीं है क्या थिंकिंग? और क्या एनिमल्स, हमारे पास क्या है एनिमल्स से अच्छा? क्यों हम अच्छे हैं एनिमल्स? हैं? इमोशंस, एनिमल्स में इमोशन नहीं होते। एक गाय के बछड़े को हाथ लगा के दिखाओ, जब उसने बछड़े को जन्म दिया होता है ना, मतलब जरूरत होगा तो जान भी ले लेगी, इतना इमोशन है उसके अंदर कि मेरे बच्चे को कोई हाथ ना लगा दे। तो देखा है कि नहीं आप लोग? जब बच्चा देती है गाय, और अगर देती क्या है, अगर उस बच्चे को कोई ले जाए, 1 साल बाद भी कोई ले जाता है तो गाय रोती है, पता है आपको? कई दिनों तक रोती है। तो ये इमोशंस तो है।
देखा नहीं बंदर कितने प्यार से अपने बच्चे को छाती में लगा के चलता है, और अगर कोई उसको हाथ लगा दे तो काट खाएगा उसको। यस और नो? तो इमोशंस तो जानवरों में भी है। स्पिरिचुअलिटी का पाथ जो है जानवरों के पास नहीं। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे देखिए इनका क्या स्पेशलिटी है बताइए, ये क्या हमारे से अच्छे हैं क्या? सपोज रेस लगाना है तो घोड़ा हम तेज भागेगा या गुप्ता जी तेज भागेंगे? घोड़ा अच्छा है ना। अगर दूर से देखना है, दूर की दृष्टि से, बहुत ऊंचे से, बिना चश्मा लगाए, बिना टेलीस्कोप के, तो मैं अच्छा देखूंगा या ईगल? ईगल अच्छा देखेगी। और अगर बिना खाए पी रहना कई दिन, तो हमारे डॉक्टर साहब बिना खाए पिए रह जाएंगे सब मेडिकल साइंस को जानकर, या फिर एक कैमल स्टोर कर लेगा ना ऊंट। यस और नो? तो देखा जाए तो हमारे से काफी अच्छे हैं एनिमल्स। कौन ज्यादा लॉयल है, मैं या कुत्ता? बताओ, मैं लॉयल हूं या कुत्ता लॉयल है? बोले कुत्ता। सच बात है, क्योंकि वो लॉयल है। कुत्ता जो है अपने मालिक के प्रति बहुत लॉयल है। करेक्ट? तो इस तरह से हम देख रहे हैं एनिमल्स हमारे से कई चीजों में बहुत अच्छे हैं और हम उतने अच्छे नहीं हैं। सच बात है ना? अगर दौड़ना है, काटना है, किसी को खाना है, एनिमल ज्यादा अच्छे। तो हमारे पास क्या अच्छा है, यही एक क्वेश्चन आज हमें समझना है कि हमारे पास क्या कुछ अच्छा है उनसे। आपने, हाँ, यस प्रभु, मल्टीटास्किंग। तो बंदर मल्टीटास्किंग नहीं करते क्या? उधर से जू निकाल के खा रहा होता है और उधर से देख रहा होता है कि कौन आया, वही उधर से क्या रोटी कौन डाल रहा है टुकड़ा, और जैसे ही करता है उसको छोड़ के खाता है। वही मल्टीटास्किंग करता है। चश्मा निकाल लेते हैं आजकल तो बंदर, इतना मल्टीटास्किंग है। और हाँ, कौन सी बेसिक नीड? उससे थोड़ा सा ऊपर सोचते हैं, थोड़ा सा पॉलिश्ड। तो ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इज ए पॉलिश्ड एनिमल सिविलाइजेशन। ऐसा कह सकते हैं क्या कि हम लोग बस एनिमल से थोड़े और अच्छा कर लेते हैं, पॉलिश्ड वे में। हम कंघी कर लेते हैं, वो उनके खुले वैसे बाल रहते हैं। तो ये जो माता जी, व्हाट्स योर नेम माता जी? स्वाति। तो स्वाति माता जी ने एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताया कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग चारों कॉमन है। थोड़ा ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात तो एक ही है। लेकिन अगर कोई फर्क है तो वो फर्क है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब उनकी जो चेतना है, जैसे आपने भी बताया, सही बताया, कि उनकी चेतना वही चार चीजें ही करेगा। उनको कुछ भी बता दो, कुछ भी कह दो, उसको करना है वही चार चीजें। उससे ज्यादा उसकी बुद्धि उस चार चीजों के लिए वो बहुत एक्सपर्ट है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के लिए। लेकिन जो एक ही चीज है जिससे हम उनसे अलग हैं, वो है कि हम स्पिरिचुअल इंक्वायरी कर सकते हैं। हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं किधर से आया हूं। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, दूसरे ने बोला तुम कहां से आ रहे हो? बोले पता नहीं। अच्छा, तुम कहां जा रहे हो? पता नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? बोले पता नहीं। अगर आप ऐसे व्यक्ति को मिलोगे तो क्या समझोगे उसको जान के? क्या है वो? है पागल। उसको यही नहीं पता कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है। एक दूसरा था, उससे पूछा भाई तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं लकी पब्लिक स्कूल के सामने। बोले लकी पब्लिक स्कूल कहाँ है? बोले मेरे घर के सामने।
बोले ये दोनों कहाँ है? बोले आमने सामने। तो हमारा जो जीवन है वो इसी प्रिंसिपल पे आज की डेट में चल रहा है। आपको पता है आप कहाँ से आए हो? पता है आपको कहाँ से आए हो? कहाँ से? अल्फा 2 ना। इस जीवन में कहाँ से आए? इससे पहले, इससे पहले कुछ था? कहाँ से आए? नहीं पता। इस जीवन के बाद कहाँ जाना है? वो तो ऐसे बोल रहे, पता तो नहीं कहाँ जाने वाले हो। ऐसे चला ये परमात्मा के पास जा रहे हैं सब लोग। चलो इनको कुछ तो आइडिया है कि कहाँ जाना चाहिए कम से कम। और ये नाम भी हमें कोई दे देता है, पैदा होते हैं उसके कुछ दिन बाद एक दिन कोई नाम दे देता है हमें कि चले। तो एक्चुअली हमें भी कुछ ज्यादा नहीं पता उस पागल की तरह, जैसे ट्रेन में था कि कहाँ से आए, कहाँ जाना, इस जीवन से पहले जीवन कौन सा था, अगला जीवन कौन सा होगा, क्या करने आए हैं हमें ये भी नहीं पता है। क्या हमारा ये इतना इंपॉर्टेंट जीवन इसीलिए मिला है कि थोड़े पैसे कमा लो, थोड़ा नौकरी कर लो और फिर शादी कर लो, इस सब चीजों में खुशी ढूंढते रहो और आखिरी तक खुश ना हो पाओ और फिर एक दिन राम नाम सत्य है। तो इसके लिए जीवन मिला है क्या? इसलिए हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें जगाते हैं, बोले जागो, जीव जागो, जीव जागो। हम ऐसे तो जगे हुए हैं लेकिन हमारी आध्यात्मिक बुद्धि जो है वो विकसित नहीं है, सोई हुई है हमारे पास। वो जैसे हनुमान जी को याद दिलाया था ना कि बोले आप तो उड़ के जा सकते हो, एक छलांग में समुद्र को पार कर सकते हो। ऐसे हम लोग भी भूले हुए हैं, इसलिए लोगों ने डिवाइस में आपको रजिस्टर किया कि भाई तुम्हें दोबारा याद दिलाते हैं। हमें ये याद नहीं दिलाएंगे कि तुम छलांग लगा सकते हो, लेकिन हमें अपनी असली पहचान और ये डिस्कवर करना है, ये डिस्कवर करना है कि मेरे को करना क्या इस लाइफ में। मेरे बहुत सारी ड्यूटीज मैं कर रहा हूँ, जैसे आप लोग कर रहे हैं, मैं भी ऑफिस जाता हूँ, मैं भी एक कॉलेज में नौकरी करता हूँ ना, ये सब तो करना ही चलता रहेगा। ऐसे नहीं हम आपको बोलेंगे कि झोला टांग के वृंदावन निकल जाओ, ये करना है। लेकिन हमारी लाइफ का मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, किस तरफ में हमारा लाइफ हमें बढ़ाना है, कैसे हमें अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन करना है। अगर वैसा ही होगा नहीं तो 60 साल 65 साल के हो जाएंगे और कहेंगे चाबी तो रिसेप्शन पे रह गई, जीवन में जो करना था वो करा ही, पता ही नहीं चला। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैदा हुए, बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, नौकरी करी, शादी हुई, बच्चे हुए, परिवार हुआ, उनकी शादी, उनसे पूछो 70 साल की उम्र में भी क्या करने आए थे जीवन में, कह रहे पता ही नहीं, दे हैव नो आइडिया। तो हर एक चीज का कुछ पर्पस होता है। अगर इस कमरे में कुछ भी रखा हुआ है, ये गिलास ये रखा हुआ है, इसका कुछ पर्पस है? क्या पर्पस है? हाँ, इसमें कुछ गिरा नहीं, गिलास का कोई पर्पस है ना? सब चीज का पर्पस है, लेकिन इस जीवन का क्या पर्पस है ये हमें कई बार बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता, कोई बताता ही नहीं। पहले दिन से बिजी हो जाते हैं हम, और आजकल तो बच्चा पैदा होता है उसको मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं, ले तो आईफोन 17 प्रो मैक्स तो बच्चा उसी में कुछ हो जाता है, उसको कोई आइडिया ही नहीं करना क्या है। तो ये जो डिस्कशन है बता रहे कि एनिमल्स ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग में तो हमारे से अच्छे हैं, इसलिए हमें ये देखना है। देखिए आप कौन अच्छा है ना? ये सारा हमने चर्चा किया अभी, आप ये स्लाइड्स को देखिए। हम लोग मटेरियल एडवांसमेंट की हाइट्स पे पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे पास लग्जूरियस हाउसेस हो गए, स्काई स्केपर बिल्डिंग हो गई, जेट प्लेन्स हो गए, मोबाइल फोन हो गए, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन हम केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग को ही सुधारते जा रहे हैं। होटल इंडस्ट्री को देखो कितना महंगा हो गया। एक होटल में ऐसे ऐसे होटल हैं, एक रात पर रुकने के 50,000 रुपए एक कमरे के, और करना क्या है, रात को सो गए और सुबह उठे तो 50,000 खत्म है। पागल में इधर बेस में आके सो जाऊंगा, इधर चटाई बिछा के 50,000 रुपये बचा लो। यस और नो? मतलब कितना उसी चीज को कितना पॉलिश करते जा रहे हैं, पॉलिश। और जो मेन चीज है
उसको देख ही नहीं। जैसे कि एक पिंजरा, एक राजकुमार ने एक राजकुमारी को एक पिंजरे में तोता गिफ्ट किया, उसको तोता पसंद था। वो बार बार पिंजरे को पेंट कर रही है, गोल्डन पेंट, ब्लू पेंट, रेड पेंट, और तोते को कुछ खिला ही नहीं रही। तोते का क्या होगा 2 दिन में? मर जाएगा। पूरे पिंजरा ही पेंट करती रहेगी, मेन तोते को कुछ खिलाए नहीं। ऐसे ही हम लोग हैं, अपना पिंजरा पेंट किए जा रहे हैं। पीटर इंग्लैंड की शर्ट, क्या नाम है आजकल, बहुत सारे नाम नहीं पता है, जो भी आपको पता है ना। जब मैं IIT दिल्ली में पढ़ता था, एक लड़का था वहाँ पे बहुत फेमस था IIT में। वो किस लिए फेमस था? बोले हर हफ्ते अपना हेयर स्टाइल चेंज करता है। एक हफ्ते देखते थे इधर से मांग है, एक तरफ से ऐसे है, फिर ऐसे है, पता नहीं क्या करता था। उसी के लिए फेमस। और हर हफ्ते कहते 4-5 हज़ार रुपये लगाता है अपना हेयर स्टाइल चेंज करने में। किसी को इधर में मजा आ रहा है तो हमें देखना है कि हम किधर में अपना हमारा अटेंशन, एनर्जी लग रहा है। और ये सब करने के बाद फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं लाइफ में, क्योंकि मिलता ही नहीं जो प्रॉमिस था सारा। और फिर सारे लोगों का ये डिप्रेशन और ये सब कहानी चलता रहता है। उसके बाद डिससेटिस्फाइड, फुल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड एंड अनहैप्पी। पढ़ना क्या लिखा है नीचे? टेक्नोलॉजिकल, जोर से पीछे तक आवाज जाना चाहिए। Technological advancement helps men enjoy better luxuries, food, better eating, sleeping, mating, defending without offering any ultimate aim of life. This is sophisticated animal civilization. तो हम कोई एनिमल से ज़्यादा अच्छे नहीं जी रहे। अगर हम केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग ही कर रहे हैं तो हम एनिमल से ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहे। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समाना। महाभारत में दिया गया है। बोले अगर हमारे पास धर्म के स्तंभ नहीं है हमारे पास हमारे जीवन में, तो महाभारत में बोला गया कि हम भी धर्म, क्या लिखा है? धर्मेण हीना पशुभिः समान। इतना तो संस्कृत सबको ही आता होगा। पशु भी, हम लोग पशुओं जैसे ही जीवन जी रहे। अच्छी बात है, हैं? हाँ कह रहे हो, ना कह रहे हो? हाँ, अच्छी बात है, हम पशुओं जैसे जीवन जी रहे हैं। हाँ, हाँ, तो ये ना, तो जब तक पता नहीं है, जैसे कि आदमी दारू पी के रेल की पटरी में सो रहा है और कह रहा है कितना सुंदर आसमान है, और असलियत कब पता चलेगी? जब रेल आएगी और फिर उसका आखिरी सोना होगा, वो है कि नहीं? तो इसको आप खुशी मानते हैं कि इतना खुशी से आनंद ले रहा है वो रेल की पटरी में सो के? खुशी है? मूर्खता है कि नहीं? मूर्खता है। तो एनिमल्स, जैसे हमने बात की ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग की बात कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे बात होती है। कुत्ते को देखो, सुबह उठेगा, जैसे ही उठेगा खाने के लिए इधर उधर थोड़ा सा खाएगा, कोई टुकड़ा मिलेगा, फिर सो जाएगा, जिधर वहीं बैठ के वहीं सो जाएगा। फिर देखेगा दूसरी गली का कुत्ता आ गया, भौंकना शुरू होगा, डिफेंडिंग। फिर देखेगा शी डॉग मिली, थोड़ा एंजॉय करेगा, फिर सो जाएगा, फिर खाएगा, फिर सो जाएगा, फिर भौंकेगा। देखो कुत्ता और कुछ कर रहा है क्या पूरे दिन में? यही करता मिलेगा। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग ऐसा करते हैं तो उतना उचित नहीं है। फिर वही आ जाएगा, धर्मेण हीना पशु भी, बोल तो दो कम से कम, पशु भी, है कि नहीं? हम सबकी बात करें, आप बुरा मत मानिए, अपना हम भी उसी में हैं, उसी कैटेगरी में। तो ह्यूमन बींग्स कैन इंक्वायर अबाउट लाइफ, डेथ एंड बियॉन्ड। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इतना कष्ट क्यों है? जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, चाह रहे हैं खुशी, फिर भी खुशी नहीं मिल रही। और इस जीवन का लक्ष्य क्या है, जाना किधर है? ये सारी इंक्वायरी ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, एनिमल नहीं इंक्वायरी कर सकते। Human beings have higher intelligence. They can understand the cause of suffering. दुख का कारण क्या है? And they can inquire about purpose of life.
they can harmonize life with God and nature and they can attain eternal happiness. तो अगर जो हमारे कर्मों का वो क्या कहता है पता है आपको, कर्मों का साइंस क्या कहता है? कर्मों का साइंस ये कहता है कि अगर हम मनुष्य, अगर किसी व्यक्ति को जैसे मांस खाना है हर समय, मांस समझते हैं, मीट, हाँ, तो कर्म उसको ये कहता है कि तुम मांस खाते हो सारा दिन या रोज या जब भी, तो ये मनुष्य जीवन मांस वाला दांत वांत बने नहीं है, तो बोले तुम अगले जीवन में तुम्हें जैकल बना देंगे, तो मांस ही खाओ। अगर तुम ईर्ष्या करते हो, मनुष्य हो के सारा दिन ईर्ष्या करते हो, तो बोले अगले जीवन में सांप बन जाओ, आराम से ईर्ष्या करो, ऐसे। क्योंकि अगर हम ह्यूमन लाइफ में हैं और काम कर रहे हैं दूसरा, तो लाओ कर्म हमें वैसा बना देता है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। ये आज सोचने के लिए आप यहाँ पे आए, आज हमें कुछ करना नहीं है, करते तो यही रहेंगे जो भी हम कर रहे हैं, चिंता मत करिए, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा लाइफ में। और अगर वो नहीं सोचेंगे, ऐसे ही चलता रहे लाइफ, तो हम इवन और डिग्रेड भी हो सकते हैं, हम एनिमल फॉर्म में भी जा सकते हैं इस ह्यूमन फॉर्म के बाद। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जो है लाइसेंस मिला मनुष्य ही बनेगा अगले जन्म में। और कोई कहे कि अगला जन्म है कि नहीं, अगर इस पे आपको डाउट है तो उसके लिए अलग एक सेशन है, साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन। जीवन के बाद फिर जीवन है, और इससे पहले भी जीवन था और उसके बाद भी जीवन है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अगर किसी को डाउट हो तो वो सेशन भी हम करेंगे कभी, साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन, यानी कि पुनर्जन्म।